तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ। उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। तो ये सब जन अपने अपने स्थान के ऊपर बैठ जाएंगे। आप जानते हैं कि जब भी परमेश्वर के दास प्रार्थनाएं करते हैं तो परमेश्वर अपने लोगों में बड़े बड़े काम करता है, यानी बड़ी गवाहियां लोगों की जिंदगियों में परमेश्वर पैदा करते हैं। और कुछ इंस्टेंट टेस्टमनीज को हम बहुत शॉर्टली सुन लेते हैं। जब हम उसकी वीडियो टेस्टमनी को देखते हैं, सुनते हैं, जब उस टेस्टमनी की डिटेल सुनते हैं तो फिर हमें और विश्वास होता है कि परमेश्वर कितने कितने बड़े काम लोगों की जिंदगी में कर रहे हैं। तो फौरन ब्रांच सब जन अपने अपने स्थानों के ऊपर बैठकर हम सब जन ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। अचानक ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। मेरा मिसकैरेज हो गया। ਜਦੋਂ मेरा मिसकैरेज हो गया ਅਸੀਂ बहुत दुखी ਹੋਏ। मैं रोन लग पई। मैं अपने हस्बैंड ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਸਕੈरेज ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਦਾਗ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਖੁੱਲ ਕੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕੀਤੇ ਟੈਸਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਰਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, 45% ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਮੈਚ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੇਬੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਦ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਖਿਡਾਉਂਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੇਬੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬੇਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਪਰਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਣੀ ਪਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੇਬੀ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਬੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ 'ਤੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਬੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਦੋਂ ਬੇਬੀ ਆਊਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ 'ਤੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ 5-5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ 'ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ 25 ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਟਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। खुदावंद का आत्मा मुझसे कह रहा है कि मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करूं जिनके पास बेबीज नहीं है, और तुम्हारी लाइफ के ऊपर मैं घोषणा करूं। सब कुछ क्लोज करके अपने हाथों को उठा लो, और जो बहनों के बेबी नहीं है अपने पेट पे हाथ रखो। अगर आपकी वाइफ यहाँ मौजूद नहीं है, हस्बैंड यहाँ है, तो वो भी अपने सिर के ऊपर हाथ रखे। आज मैं घोषणा करता हूं खुदा का दास होने के नाते, जो बहनें यहाँ मौजूद है और आपके बेबीज नहीं है, अगली 25 को, अगली क्रिसमस को आप अपने बेबीज की टेस्टिमनी के साथ इस पुलपट पे खड़ी होंगी इन जीसस नेम। आपके सारे कर्ज को मैं ब्रेक करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, टूट रहे हैं आपकी लाइफ से इन जीसस नेम। उस प्रेयर ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਇੱਕਦਮ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇयर ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ। ਜਦ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। मैं अपने हस्बैंड ने दस्या, वो भी बहुत खुश है। जो घर की फैमिली ने दस्या, वो भी बहुत खुश है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद किया। फिर प्रभु ने मैनू ते मेरे
ਬੇਬੀ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਗੋਦ ਚ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿਡਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਲੀ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ-ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। जैसे कि परमेश्वर के वचन भजन संहिता 30 अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। सचमुच परमेश्वर ने अपना वचन पूरा किया और परमेश्वर ने एक बहुत ही भयानक बीमारी से बाहर निकाल के एक नया जीवन दिया और इनकी जिंदगी को पूरा खुशियों के साथ भर दिया। तो आइए इनकी इस अद्भुत गवाही को हम देखते हैं। हालेलुया, सभी को जय मसीह की। मेरा नाम निशा है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। आज मैं अपने बेटे के जीवन की बहुत ही बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। मेरे बेटे का नाम युग है। अगस्त 2024 की बात है, अचानक उसको फीवर आया और जब फीवर मैंने चेक किया तो मैं दवाई लेने के लिए गई पास के क्लिनिक से, तो डॉक्टर ने दवाई दे दी, बोला कि इसके आराम आ जाएगा। उसको आराम नहीं आया। फिर मैं दूसरे डॉक्टर के लेकर गई, उसको तब भी आराम नहीं आया। फिर उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब होने लगी। उसको डेली बुखार रहता था 102, 103। मैं रात को उठकर उसको ठंडे पानी की पट्टियाँ करती थी। सब सोते रहते थे लेकिन मुझे पूरी रात नींद नहीं आती थी। मैं अपने बेटे को गोद में लेकर देखती रहती थी कि इसका फीवर कब कम होगा। जब मेरा बेटा मेरी गोद में था और जब उसको दौरे पड़ने शुरू हुए तो मैं एकदम से डर गई और मैं इतना घबरा गई कि इसको हुआ क्या है। फिर मेरे हस्बैंड आए, मैंने उनको बुलाया तो हम पूरा परिवार उसको लेकर हॉस्पिटल गए। डॉक्टरों ने देखते ही बोला कि इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। उन्होंने बोला कि इस मुंह के अंदर ऐसे पाइप डालकर और उसको सांस देनी पड़ेगी गुब्बारे से और फेफड़े भी फट सकते हैं, तो हमारी कोई गारंटी नहीं है, आप साइन कर दो। हमने साइन भी किए डरते डरते, लेकिन जब उसको एडमिट किया तो डॉक्टरों ने बोला कि हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप इसे दूसरे हॉस्पिटल में ले जाओ। उन्होंने मुझे एम्बुलेंस करा के दी और मैं जब दूसरे हॉस्पिटल गई, फिर दूसरे हॉस्पिटल वालों ने भी देखकर बोला कि बेटे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसको वही सिचुएशन है जो पहले वाले हॉस्पिटल ने बताई थी। वो लंबी लंबी सांसें भर रहा था, तो मेरा दिल इतना घबरा रहा था कि अब क्या होगा। ऐसे करके उन्होंने भी दूसरे हॉस्पिटल भेज दिया। उस रात मैं हॉस्पिटल में उसे ऐसे ही लेके जाती रही। मेरे बेटे की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उसे कोई दाखिल करने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने भी मुझे बोला कि आप दूसरे हॉस्पिटल जाओ। ऐसे ही पूरी रात एम्बुलेंस में मैं अपने बेटे को लेकर घूमती रही। फिर जब सुबह किसी रिश्तेदार ने मुझे फ़ोन पर बताया कि ऐसे बच्चे का कोई हॉस्पिटल है, वहाँ पर अपने बेटे को लेकर जा, वहाँ पर तेरा बेटा ठीक होगा। लेकिन मैं जब गई तो उन्होंने भी सेम ही चीज़ बोली कि हम इस बेटे का अब मतलब ज़्यादा देर हो चुकी है और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने वहाँ पर बोला कि इसे एडमिट करो, हम साइन करने के लिए तैयार हैं। जब उसको एडमिट किया तो उसे जब भी दौरा आया, डॉक्टरों के सामने भी उसको आया, तब उन्होंने एकदम से उसको एडमिट किया और फिर उसको खून भी चढ़ा। बोला कि इसको खून की कमी भी आई है, इसको खून भी चढ़ाना पड़ेगा। तो उसको खून भी चढ़ा और आर्टिफिशियल जो ऑक्सीजन होती है उसमें उसको रखा 4 दिन तक। मेरा बेटा इतना ज़्यादा मतलब परेशान था उस ऑक्सीजन से कि वो रोए जा रहा था और मैं बाहर से ऐसे देख रही थी उसको, तो मेरा दिल ऐसे कर रहा था कि अब क्या होगा। उस रात को मैं सोच रही थी कि अब क्या होगा, शायद घर नहीं आएगा अब, क्योंकि डॉक्टरों ने जिस तरीके से मुझे जवाब दिया था मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरे पति ने मुझे संभाला, उन्होंने मुझे हिम्मत दी। जब मेरा बेटा आईसीयू में था तो उसको कोई होश नहीं था, ना वो पानी पी रहा था, ना वो आंखें खोल रहा था। जब वो
मैं उसको डायपर भी चेंज करती थी तो उसको ये भी नहीं पता लगता था कि मम्मा उसके पास है। उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। जब मैं आईसीयू में अपने बेटे के साथ होती थी तो इतनी डरी सी रहती थी, क्योंकि मेरे सामने ही 2 बच्चों की डेथ हो गई और मेरा मन इतना डरता था तो मेरे मन में ख्याल आता था कि ये क्या हो रहा है, और मैं डरी सी रहती थी बहुत। मेरे हस्बैंड मुझे जब बाहर शीशे में से देखते थे तो वो मुझे हिम्मत देते थे। जब कोई परिवार वाला आके मेरे बेटे को देखता था तो मुझे नहीं, पर मेरे हस्बैंड को ऐसे बोलते थे कि ये नहीं रहेगा जिस हिसाब से इसकी हालत है, और 2 बच्चे एक्सपायर भी हुए हैं आईसीयू में। लेकिन वो आके बस एक ही बात बोलते थे कि मुश्किल है इसका बचना। मेरा बेटा कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। जब मैं उससे बात करने के लिए बोलती थी तो सिर्फ आंखें खोल के देखता था और कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहा था। जब उसको हॉस्पिटल में लेकर गए थे तब डॉक्टरों के सामने भी उसको जब दौरा पड़ा तो डॉक्टरों ने बोला कि दिमाग में बुखार चढ़ने की वजह से उसको दौरा पड़ा है। जब डॉक्टर आके उसे चेक करते थे और इंजेक्शन लगाते थे और मुझे जो दवाई दे के जाते थे कि अपने बेटे को ऐसे देनी है, तो उसको कोई सुध बुध नहीं रहती थी। डॉक्टर आते अपना काम करते और चले जाते थे और मैं देखती रहती थी कि बेटे को तो कोई फ़र्क ही नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे करते करते 3 दिन निकल गए थे उसे आईसीयू में ही। और जब मेरे बेटे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था दवाइयों से, इंजेक्शन से, तो मन में बहुत सी बातें चल रही थी कि कब वो समय आएगा जब दोबारा मैं अपने बेटे के साथ खेलूँगी, उसे अपने हाथों से खाना खिलाऊँगी, उससे बातें करूँगी। तो इस चीज़ के लिए मैं सोचती रहती थी वहाँ पर बैठी हुई। फिर जब डॉक्टरों ने उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट किया और मुझे बता दिया गया कि अब इससे ज़्यादा इसका कोई इलाज नहीं है और इसे आप घर ले जाइए, और डॉक्टरों ने जवाब ही दे दिया था कि अब इसकी सेवा करिए घर पे जाके और इसे खिलाइए और अच्छे से इसका ध्यान रखिए। फिर जब मेरे बेटे की हालत ऐसी थी तब भी मेरा परमेश्वर पे मेरा भरोसा था, और मैं पहले से ही अंकुर नरोला मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई थी जो कि जीवित चर्च है। मैंने गवाहियाँ को सुना था और मैं देखती थी कि मिनिस्ट्री में कितने बड़े बड़े काम होते हैं, कैसे लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं। तो मेरा विश्वास भी मेरे परमेश्वर पे था कि मेरे बेटे को भी प्रभु हील करेगा। फिर मैंने अपने बेटे की प्रेयर रिक्वेस्ट को हॉस्पिटल जीमेल पे सेंड किया। फिर 25 अगस्त 2024 को जूम ऐप के जरिए जब परमेश्वर के दास ने मेरे बेटे पर ले हैंड प्रार्थना की, यीशु मसीह के नाम में सब जो इस पेशेंट ग्रुप में है हील हो जाओ, जीवन पा जाओ यीशु के नाम में। यीशु मसीह का आत्मा तुम्हें छू रहा है, तुम्हें प्रार्थना करनी है रोज, और मैं तुम्हारी बॉडी में हीलिंग को जाता हुआ देख रहा हूं। आमीन हो जाए, ये आशीष हमारी है। जूम ऐप के जरिए जब परमेश्वर के दास ने मेरे बेटे पर ले हैंड प्रार्थना की, उसके बाद से मेरे बेटे की रिकवरी स्टार्ट हो गई। उस प्रेयर के बाद मेरा बेटा खाता है, बोलता है, सब कुछ करता है जो बच्चे करते हैं नॉर्मल, वो सारी चीज़ें मेरा बेटा अब करता है और मेरा बेटा अब ठीक है बिल्कुल। अब हम पूरा परिवार खुश है और मैं अपने बेटे के साथ, अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ। मेरे हस्बैंड और मैं इतना आनंद में रहते हैं और मेरे बेटे को देखकर कि हम बहुत खुश हैं। अब जो लोग मेरे बेटे को देखते थे उस हालत में, तो आज वो मेरे बेटे को देखते हैं और वो हैरान है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं उन्हें बताती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह महान है, उसने मेरे बेटे की लाइफ में बड़ा काम किया है, उसे नया जीवन दिया है। जिन बहनों के बच्चे अभी भी बीमार हैं या फिर हॉस्पिटल में हैं और वो परेशान हैं, तो मैं उनको एक ही बात बताऊंगी कि परमेश्वर पे बने रहो, खड़े रहो। वो परमेश्वर महान है, वो बड़े काम करता है और उस पर भरोसा रखो, वो आपकी लाइफ में जरूर बड़े काम को करेगा। जैसा वचन में लिखा है, धर्मी का वंश बचाया जाएगा, और ये वचन मेरे बेटे की लाइफ में पूरा हुआ। और मेरा विश्वास है जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे बेटे को चंगा किया, वो आपके भी बच्चों को चंगा करेगा। मेरे बेटे की इस बड़ी चंगाई के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु के दास दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह।